second cause is confusion in students. When a teacher finds a student indisciplined in the classroom, he very easily asks the student, "What did your parents teach you?" Similarly, parents ask their child, "What you learn in school or in college, don't you know how to respect your elders?" This makes the student confused, and as a result, they are more and more indisciplined. As from the side of teachers, it is not easy for a teacher to teach and control a class of 40 students, 50 students, or even more than this. The teacher cannot attend to each student and satisfy him. There is another cause that teachers and students have been pulling apart in the last few years. Quite a few teachers limited their work to classroom teaching and gave little importance to outside contact with students. As a result, they couldn't affect the general attitudes and thoughts of their pupils. Now, how we can overcome all these problems? The parents should pay full attention to their responsibilities towards their child for building his character and not leaving everything to the teachers. The teachers should try their level best to understand the psychology of the student. The teachers should be given the authority and power to control the students. By bringing the students and teachers closer, let the students hear what learned teachers have to say outside the classroom. There is a good need to remove all major causes of dissatisfaction. Let there be economic equality, equality of opportunity, and social justice in a really complete way. Then much of the irrespect would automatically disappear. Students should help themselves in making their minds, because a great author said that self-respect is necessary to a good individual life as well. A person who lets his passions loose or his ideas roam idly in doing no service either to himself or to the society. If he cannot respect his ideas or his character, he is a failure both from personal and society's point of view. His unbecoming attitude will land him in troubles and misery. And I think you people don't want to be called a failure. So take it as a request. Develop your sense of respect. It is necessary for an open mind. And with an open mind, we will be able to give deserving people respect. And in the end, always remember, if you cannot give respect, you cannot expect respect. Thank you very much. जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, फिर आसमां का सूरज जमीन से निकलेगा। मेरी जमीन मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मेरी जमीन मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। Now please Sidra and fellows come and express their feelings in the language of a song.
में कांपते आंसू, डरी डरी माओं के बेसदा नोहे, कहाँ रुकेगा लहू का बेअमार सैलाब, उदास बहनों की चादर के खूंफिशा पुर्जे, स्याहपोश यतीमों की उछली के हिस्सियों के भंवर, ज़ईफ माओं के आंसू हर एक मोड़ पे आज अमीर शहर से अपना हिसाब मांगते हैं। यही शहर है तो क्यों कर हयात गुजरेगी, यही शहर है तो क्यों कर हयात गुजरेगी, न जाने कौन से मक्तल में रात गुजरेगी। से अगर दूर निकल जाओगे, ख्वाब हो जाओगे, अफसानों में ढल जाओगे, अपनी मट्टी पे ही चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पर चलोगे तो फिसल जाओगे। तुम हो एक जिंदा जावेद रवायत के चराग, तुम कोई शाम का सूरज हो के ढल जाओगे। इसी ऐलान के साथ मैं दावत दूंगी एक नेशनल सॉन्ग गाने को BCS पार्ट 1 के स्टूडेंट साहब के लिए पेश करेंगे। तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा ख्वाइश के, इस चमन के फूलों पर रंगो आप तुमसे है, ज़मीं का हर जर्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फिज़ा तुम्हारी है, बहरों पर तुम्हारे हैं, गशा के हैं धारे, रह गुज़र तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा ख्वाइश के, इस ज़मीं की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़े पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का, नज़्म ज़ब्त को अपना मेरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा ख्वाइश के, ये ज़मीं मुक़द्दस है, माँ के प्यार की सूरत, इस चमन में तुम सब हो, बरगो बार की सूरत, देखना गवाना मत, दौलते यकीनों को, ये वतन अमानत है और तुम अमीरों को, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा ख्वाइश के। आखिरी सांस लेते हुए शोहर ने बीवी से कहा, मेरे मरने के बाद तुम जावेद से शादी कर लेना। जावेद से? बीवी ने ताज्जुब से पूछा। वो तो मरने के बाद तुम जावेद से शादी कर लेना। जावेद से? बीवी ने ताज्जुब से पूछा। लेकिन तुम तो उसके जानी दुश्मन हो। शोहर ने कहा, इसीलिए कह रहा हूँ, मैं उससे इंतकाम लेना चाहता हूँ। जिस तरह कहा जाता है कि एक नयाम में दो तलवारें नहीं रह सकती, बिल्कुल इसी तरह एक शोहर की दो बीवियां नहीं हो सकती। अगर हो सकती हैं तो इन साहब के साथ भी कुछ इसी तरह का सिस्टम है। देखते हैं कि इनके पास इसका क्या हाल है।
मैं अपनी तालबात को दावत देती हूँ कि वो आएं और ड्रामा पेश करें। डेमू तेरा मेनू तो साफ करिएगा कल सफाई कर सारी। बकवास बंद करनी एजुकेटेड। ये देखो जरा अनएजुकेटेड गवार सी औरत अभी बात की तो लड़ने के लिए तैयार बड़ी गल आंदी जे मैनू नहीं आंदी तू तो रह के मुझसे बात किया तुम्हारा तो करीब आना मुझे पसंद नहीं है। अच्छा तौबा मेरा मेकअप खराब कर दिया अभी तो मैं करवा के आई। अपने साथ क्या लाइए सिर्फ मेकअप के साथ मेकअप कैसा मैं तो मेकअप लेके तुम क्या लेके आई ये तो बताओ जरा तुम मुझे। मेरे मुरब्बे हैं मेरे नाम मुरब्बे आए ने आई डोंट लाइक मुरब्बा इनके इतने मुरब्बे हैं शाम को रेडियो में लगते हैं। हाँ मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं दूर तो रोज तू की नाम ले आई मैं बहुत कुछ लेके आई बस मुझसे बात मत किया तू रहा करो तुम मुझसे तुम तो बिल्कुल अनएजुकेटेड हो। जब भी घर में आती हूँ तो मैं बैठी लगाई रखती हूँ। ये देखो ना मुरब्बा लेके बैठी थी स्कूल में तो मुझे चाय ही बना दे। मैं तो मीटिंग में जा रही थी जिसमें गेट जा तुम मेकअप करके बाय डार्लिंग सी यू तुम ही बना दो जो मीटिंग है मैं भी शम्बो चाय तो बना दो ठीक है। नहीं आना क्या